Good morning, everyone. Today we are going to learn computer educations. Class 4th. Students, what do you see in this picture? Teacher. Yes. And students. And what are they doing? Practicals. Teacher are taking a practicals. They are operating a computer, right? Okay. Now tell me the basic, because last year you studied the computer science subject, right? Now tell me, what are the input devices and output devices of computer? Okay, firstly tell me a definition. Yes, you. Okay, those devices which are used to give data and instruction to the computer is called as input device. Very good. Now tell me devices. Yes, last bench, stand up, tell me. The input devices are keyboard, mouse, joystick, light pen, trackball, scanner. Oh, very good, very good. And also graphic tablet, yes, right? Microphone, very good. Now tell me output devices. Firstly, I would like to ask you, what is output devices? Yes, you stand up. Output devices. Definition first of all. Those devices which are used to produce result of data proceed are called output devices. Very good. मीन्स ऐसे डिवाइस जो क्या करते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं डेटा का, डेटा प्रोसीड आर कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस, राइट? नाउ यू फर्स्ट बेंच टेल मी, what are the output devices? Output devices, tell me. Printer, yes. Printer, right? Speaker, monitor, very good. Some devices like touchscreen, USB drives, both functions are the curricular hardware component that enable user interaction with the system, right? Okay, projector, output device, plotter, output device, very good. Now from today we are going to take first chapter of कंप्यूटर हिस्ट्री. इसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग जनरेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर हिस्ट्री. ओके, सो इसमें हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव. देख लो बच्चों, आफ्टर लर्निंग द यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट द वेरियस इन्वेंशन इन कंप्यूटर. ओके, आपको डिफरेंट टाइप्स के इन्वेंशंस पता चलेंगे कंप्यूटर के. देन अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑकर इन अ कंप्यूटर इन टर्म हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आपको पता चलेगा इस चैप्टर के बाद, आप समझ जाएंगे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कंप्यूटर हार्डवेयर में एंड सॉफ्टवेयर में क्या क्या होते हैं, राइट राइट. Identify and classify the computers in various categories. Okay. Understand the basic difference between the various types of computer. Okay. इस चैप्टर के बाद आपको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं. ओके, उसके बाद आपको आपको इसकी पहचान हो जाएंगी. आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्लासीफाई कर सकेंगे कंप्यूटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में.
differentiates computer according to the processed data according to their size and function perform. ओके, डेटा प्रोसीड करना उसके साइज के हिसाब से एंड फंक्शन परफॉर्म करना आपको आ जाएगा. ओके, राइट. देन लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर हिस्ट्री अवर चैप्टर. ओके, सी, we all know that computer is a electronic machine, right? As we have learned, seen in its inspections, computer has been involved a lot of last couple of decades. The in earlier days, computer was such a big machine. Computer was such a big machine that required space like a complete room, and hence its maintenance cost was very much far away from common man. A common man could have not thought to have computer for personal use. But nowadays, in early 3% using computer in one way or other, from bulky machine to small as like SIM card, possible because ever changing the technological world. It means that in a first para we say, देखो बच्चों, जैसे कि हमने देखा है कि शुरुआत से लेकर पिछले कुछ दशकों में कंप्यूटर का क्या हुआ है, बहुत विकास हुआ है. पहले के दिनों में कंप्यूटर इतनी बड़ी मशीन हुआ करती थी कि उसे पूरे कमरे जितनी जगह चाहिए होती थी, राइट. देन तब तो आप नहीं थे, बट हमारे जो सीनियर्स हैं उनने देखा है कि कंप्यूटर क्या हुआ करती थी, बहुत बड़ी मशीन थी. ओके, और अभी आपने क्या देखा, अभी अब न्यू डेवलपमेंट हुई है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ गए हैं. पाम हैंड कंप्यूटर भी है, लैपटॉप है जैसे, है ना. बट पहले ज़माने में ऐसा होता था क्या, नहीं. जब कंप्यूटर सबसे पहले आया था इतनी बड़ी मशीन हुआ करती थी कि पहले कमरे जितनी जगह चाहिए होती थी. इसीलिए उसका रखवार मीन्स केयर करना, उसका खर्च आम आदमी को बहुत हे पड़ता था, बहुत सा दूर था. फिर क्या हुआ, एक आम आदमी अपनी निजी इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर रखने के लिए बार बार सोच भी नहीं सकता था. सोच सकता था क्या, इतना बड़ा रूम जितना कंप्यूटर होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना. लेकिन आजकल हर 3 में से एक व्यक्ति अपने घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है. देखो, आपके घर में आपकी सिस्टर्स, पेरेंट्स जो भी हैं, आपके रिलेटिव्स है, सबके हाथ में मोबाइल दिखता है ना आपको, है ना. आजकल क्या हो गया है, एंड्रॉयड फ़ोन कितनी काम की चीज़ हो गई है ना. तो फिर इतना कंप्यूटर कितना बड़ा था. एक हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर ऐसा था कि रूम जितनी जगह उसे लगती थी, बट उसका डेवलपमेंट होते 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 आज हमारे हाथ में, आपके हाथ में जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कंप्यूटर डिवाइस ही है ना, कंप्यूटर ही है, वन टाइप ऑफ कंप्यूटर है ना. तो देखो बच्चों, लेकिन आजकल सबके हाथ में आप कंप्यूटर यूज़ ही कर रहे हैं आप, है ना. मोबाइल में देखो, एंड्रॉयड में इंटरनेट है, फ़ोन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब है, जो इट इज़ अ कंप्यूटर, है ना. इट इज़ अ स्मार्ट कंप्यूटर, इसीलिए उसे स्मार्टफोन कहा जाता है ना, स्मार्ट. भारी भारी मशीन से लेकर सिम कार्ड जितनी मशीन तक दुनिया का कारण संभव हो पाया है. मीन्स इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि जो अपने मोबाइल में सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड
सिम कार्ड जितनी छोटी मशीन तक सब अभी दुनिया में संभव हो पा रहा है. राइट, अंडरस्टूड. ओके. द old age necessity is the mother of inventions holds for the computer, but also because the computer invented as a result of man's search fast, accurate and reliable calculating device. The evolution of computer is defined in the term of various eras. Let us look of them. योर फर्स्ट इरा इज मैनुअल इरा. ओके, देखो बच्चों, द आवश्यकता का आविष्कार, जैसे इन्वेंशन हम कहते हैं, क्या है, जननी है ना. यह पूरी कहावत कंप्यूटर के लिए साबित हो चुकी है कि कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो मनुष्य के द्वारा तेज हुआ है. मनुष्य ने क्या किया है, मैन ने क्या किया है कि जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर इस डिवाइस को फास्ट कर दिया, एक्यूरेट कर दिया, रिलायबल कैलकुलेटिंग डिवाइस हो गया है अभी, है ना. तो अभी हम देखेंगे कंप्यूटर का जो विकास है विभिन्न युगों के संदर्भ परिभाषित कैसे किया गया है. आइए अभी हम एक नज़र डालते हैं. डू यू सी दिस स्लेट? आपको ये स्लेट दिख रही है? कैन एनीबडी टेल मी विच टाइप ऑफ स्लेट इट इज? आपकी जानी पहचान की ये स्लेट क्या दिख रही है? स्लेट पर बीड्स, राइट. एबैकस, यस, राइट, वेरी गुड. तो सबसे पहले क्या हुआ था ईरा में? इस टाइप की स्लेट आई थी, राइट. अभी हम देखेंगे. उसके बाद आपको दिख रहा है बोर्ड भी दिख रहा है, नीचे 7 का टेबल दिख रहा है. वेरी नाइस. ओके, देखेंगे अभी. मैनुअल ईरा. मैनुअल, ये जो आप स्लेट देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम? मैनुअल. एबैकस की स्लेट किसके लिए यूज होती है बताओ बच्चों? कैलकुलेटिंग के लिए. For which type of calculator, means which type of sums we are solving on it? Addition, subtraction, right. Very good. See, मैनुअल इरा. उससे भी पहले कंप्यूटर की इवोल्यूशन में हम देख रहे हैं मैनुअल इरा. सबसे पहले स्लेट आई है. देखो, द अर्लीस्ट इरा डिवाइस दैट क्वालिफाइज एज डिजिटल कंप्यूटर इज एबैकस. डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एबैकस है. उससे भी पहले मैनुअल इरा है ना. सो किससे पहले? कंप्यूटर के भी पहले. जिस ऐसा कैलकुलेशन का सबसे पहले यही इन्वेंशन हुआ. डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आने वाला सबसे पहला उपकरण एबैकस है. दिस डिवाइस अलाउ द यूजर टू रिप्रेजेंट नंबर दिस पोजिशन ऑफ बीट्स ऑन रैंक. ओके, यह उपकरण आज जो आपको दिख रहा है एक रैंकर मोतियों, बिट्स म्हणजे मोती, बिट्स मोती के स्थिति के आधार पर संख्याओं को दर्शाने की अनुमति देता है. सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी कैरिड आउट रैपिडली एंड इफिशिएंटली बाय पोजिशनिंग द बिट्स ऑन रैंक एप्रोप्रिएटली. राइट. देखो बच्चों, यह उपकरण उपकर्ता का एक रैंक है. मीन्स मोतियों के बिट्स क्या होती है, कैलकुलेटिंग करते समय हम आगे पीछे करते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर. जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग. तो यह उपकरण एक रैंक पर मोतियों की स्थिति पे संख्याओं को दर्शाती है, अनुमति देता है. मानकों को रैंक पे सही ढंग से सरल जोड़ और घटाव की तेजी से और कुशलतापूर्वक हम क्या करते हैं कैलकुलेटर. ओके. Although the abacus was invented around 600 before Christ, BC before Christ, was invented Chinese and Egyptians, it is still being for East. हालांकि एबैकस का आविष्कार 600 बिफोर क्राइस्ट पूर्व हुआ था.
पर इसका जो उपयोग है चीनी और मिस्राई वासियों के द्वारा किया जाता था। चीनी लोग होते थे, मिस्राई धातु वो यूज़ करते थे पहले। यह लेकिन यह अभी भी सुदूर पूर्व में उपयोग में है। देखो बच्चों, इतने सालों बाद भी इसका हम यूज़ कर रहे हैं ना, बिकॉज इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी थी ये, वो उस मैनुअल थी, है ना। अनदर आज भी मैनुअल है बेटा, बट क्या है, उस ज़माने में चीनी लोगों ने ये निकाला था। अनदर मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस टू स्पीड द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस वॉज द जॉन नाइफर बॉर्न, और कपबोर्ड multiplication calculator developed by a Scottish man named John Naiffer. A complete set of Naiffer bonds consists of rods, one of each 0 to 9 called bonds, which number carried on them. It is designed 17th century and they first appear print 1614. देखो अभी इन सेकेंड पैरा, हमारा सेकेंड पैरा कह रहा है कि गुणा प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक और मैनुअल उपकरण तैयार किया गया। जॉन नेपियर की हड्डी या कार्डबोर्ड गुणन कैलकुलेटर था। इसे ये क्या है, कैलकुलेटर है। यूज़ किसके लिए किया जाता था, मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट, जिसे जॉन नेफर नामक एक स्कॉटिश व्यक्ति ने विकसित किया था। ठीक है, ये कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। एबिकस की तरह दूसरा इन्वेंशन किया था। नेपियर की हड्डी के एक पूर्ण सेट में छठे होती थी। छठे देखो मीन्स ऐसा क्रॉस क्रॉस देख रहे हैं आप। 7 का टेबल उसने फॉर्म इस बोर्ड से क्या किया, तैयार किया। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, देख रहे हैं आप, इसी तरह से, है ना। तो नेफर की हड्डी के छठे होती थी, जिनमें 0 से 9 तक अंकों थे। देखो 0 से 9 तक अंक थे, है ना, इस बोर्ड में आप देख रहे हैं। ओके, नीचे देखो, नीचे की फिगर में 0 to 9 तक, है ना। सो उन पर संख्या अंकित थी। शताब्दी से 1614 में क्या हुआ था, छपा था। क्या छपा था, उन संख्या पे क्या कर, जिनमें 0 से 9 तक अंक क्या कही थी, अंकित थी। शताब्दी से पहले 1614 में वो प्रिंट हुआ था बेटा, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा मैकेनिकल ईरा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। आई होप यू अंडरस्टैंड and thanks for watch this video.